Good evening to all of you and welcome back to my lecture. Today's our topic, which we are going to continue, is structure of benzene. See, first of all, let us understand the sources of benzene. From where do we get benzene? Benzene मिलता कहाँ से? तो जो हमको बताया गया है इस तरीके से, the first time scientist Michael Faraday obtained benzene from illuminating gases in 1825. First time that was the invention, first time rather say discovery of benzene they found out from this, particularly Michael Faraday. Then in 1845 scientist August Hoffman, he obtained benzene from coal tar. From where did he get it? From coal tar. Actually, destructive distillation of coal gives you coal gas, coal tar and coke. जो आपके पास कोल होता है, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से आपको तीन चीजें मिलती है, कोल गैस, कोल टार एंड कॉक. एंड फ्रॉम दैट कोल टार हैज लार्ज अमाउंट ऑफ aromatic hydrocarbons, and if we do the destructive distillation of that coal tar, then we get toluene, xylene, naphthalene, etc. तो ये दो तीन तरीके हुए. और एक तरीका है फ्रॉम वेयर, अगर अल्केन्स जो नॉर्मली होते हैं, वी ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. अल्केन को कहां से लेके आते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम. अगर वही अल्केन को कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ज्यादा हीट किया जाता है एट हाई प्रेशर, वी गेट बेंजीन, वी गेट xylene, toluene, etc. These things can be obtained. So these are the source of benzene. But we started with the structure of benzene. Okay, structure of benzene में होता क्या है? So सबसे पहले when they obtained benzene, they didn't know what structure it has. Rather say they even didn't know कि इसके constituent elements कौन कौन से हैं. To determine the constituent elements, what they do क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस में ऐसा होता है, सपोज मेरे पास यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस है, ये इसके अंदर क्या क्या है मुझे आइडेंटिफाई करना है. दे परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड फ्रॉम सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसके रिजल्ट से दे कैन फाइंड आउट कि इसके पास क्या है. उन्होंने फाइंड किया डूइंग क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ बेंजीन दैट बेंजीन हैज कार्बन एंड हाइड्रोजन. Not only that, after doing qualitative analysis, they did quantitative analysis. Quantitative analysis आपको देता है कि कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है. And quantitative analysis, they gave the ratio of carbon and hydrogen is 1:1. That means उसका जो empirical formula है, it is CH, 1 carbon is to 1 hydrogen. That's the empirical formula. बराबर है कि नहीं? After finding out empirical formula, they found out the empirical formula weight. And if you do remember your semester 1, we used to do certain numericals like that. Find out empirical formula, find out molecular weight, empirical weight, and then find out the molecular formula. And there are different methods. By using those methods, we can find out the molecular weight. अगर सब्सटेंस क्या है वो पता नहीं, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड कर सकते हो. देयर आर डिफरेंट मेथड्स. नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे. अननोन सब्सटेंस है, पता ही नहीं है कौन सा है. इस बार भी किया ना वो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में, अननोन गैस का हमने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया बाय यूजिंग द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, चैप्टर 2 के अंदर. देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसकी वजह से हम यूज कर सकते हैं. उन्होंने मॉलिक्यूलर वेट फाइंड किया 78 ग्राम प्रति मोल. And by using this 13 and 78, n equal to 6 मिला, तो CH को n equal to 6 से उनको molecular formula मिलेगा C6H6. That's the first thing they found out. Once they talked about the structure of benzene, they found out its formula. They found out the constituent elements. They found out the proportion ratio 1:1. Then they found out molecular formula C6H6. After finding out C6H6, they were interested उसका स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है. अभी 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन अलग अलग तरीके से कंपाउंड के अंदर कंबाइन हो सकते हैं. शायद ऐसे भी हो सकते हैं ना, 6 के 6 कार्बन एक ही लाइन में कंबाइन है, या तो ओके ऐसा भी हो सकता है.
ज्यादा मैंने ड्रॉ कर दिए शायद, यस। ऐसा भी तो हो सकता है 6 कार्बन, करेक्ट और नॉट? हाउ डू दे डिटरमाइन? या तो ऐसा तो हो सकता है ना 6 के 6 कार्बन ऐसे साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए, हो सकता है ना। they never knew, so to do that they have done one experiment. ओके अभी मैं दो आपको एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना ये दो एक्सपेरिमेंट्स। पहला एक छोटा सा सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। नोटिस कीजिए, अगर आपके पास अल्कीन है, जैसे कि मेरे पास ये वाला है वो ब्यूटीन है, ये क्या है? ब्यूटीन। एंड मेरे पास दूसरा भी ब्यूटीन है, लेकिन फर्क ये है कि ये ब्यूटाडाइन है। ये क्या है? डिफरेंस क्या है? एक के अंदर एक सिंगल डबल बॉन्ड है, दूसरे के अंदर दो डबल बॉन्ड है। अगर मैं इसका हाइड्रोजीनेशन करता हूं, दोनों के अंदर चाहिए उतने हाइड्रोजन डालूंगा, वॉट एवर दे वॉन्ट, एज मेनी एज दे वॉन्ट, लेकिन इसके अंदर एक ही डबल बॉन्ड होने की वजह से it will react with only 1 mole of H2. It will react with how many moles of H2? 1. But इसके अंदर how many double bonds आते हैं? 2. Then it will react with 2 moles of H2 because एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 1 मोल H2 चाहिए। यहां पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा, यहां पे एक ऐड होगा, यहां पे एक ऐड होगा, यहां पे एक ऐड होगा, एंड से आपको मिलता है। Point over here is, if an alkene has one double bond, it requires 1 mole of H2. An alkene has 2 double bond, it requires 2 moles of H2. I had another alkene. I am not telling how many double bond does it have. Can you guess how many double bonds it should have? How can you tell me that? Because it requires 3 moles of H2. मतलब any compound, if we do hydrogenation and if it is taking 3 moles of H2, what do we conclude? It must have one of the option. There are other options out there, I'm not discussing those options, but it should have 3 double bonds. Am I right or wrong? Correct or not? पहला चीज ये। ओके, सेकंड थिंग जरा ध्यान से समझना। मेरे पास यहां पे एक ब्यूटीन है, और ये भी ब्यूटीन है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डू आई रिक्वायर? आई थिंक सो 1 मोल ईच। यस और नो? बट इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे? और एक ब्यूटीन है, अगर मैं इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं, इसको मैं एक्स बोलता हूं, इसको वाई बोलता हूं, और इसको जेड बोलता हूं, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सा ए के साथ एक्स जाएगा, वाई जाएगा, जेड जाएगा? ओके, ए के साथ क्या जाना चाहिए? ए के साथ जेड, बी के साथ वाई। आर यू श्योर? बी के साथ वाई? यस, दिस इज अवर बी, तो वाई यहां पे। एंड सी के साथ आर यू श्योर? क्यों? बिकॉज आपके पास एक का स्ट्रक्चर एक ब्रांच वाला था, उसका हाइड्रोजिनेशन किया, तो फाइनल आंसर भी एक ब्रांच वाला ही मिलना चाहिए। यहां पे बी था, साइक्लिक फॉर्म में था, तो आपको हाइड्रोजन से जो मिलना चाहिए कैसा मिलना चाहिए?
साइक्लिक फॉर्म ही मिलना चाहिए, और ये भाई साहब लीनियर थे, तो आंसर क्या होना चाहिए? लीनियर। करेक्ट, दैट्स व्हाई यू कंक्लूडेड दिस। एम आई राइट? आर यू फॉलोइंग मी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करेक्ट और नॉट? मतलब आप रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को मैच कर सकते हो। किसी ने अगर आपको बताया कि ये प्रोडक्ट है, तो आप बोल सकते हो कि उसका रिएक्टेंट भी ये वाला ही होना चाहिए। करेक्ट और नॉट? यस और नो? आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख के रिएक्टेंट डिसाइड कर सकते हो, रिएक्टेंट देख के प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर डिसाइड कर सकते हो। करेक्ट और नॉट? अच्छा, ये चीजें दिमाग में रखते हुए जरा सा जो एक्सपेरिमेंट हमारे टेक्स्ट बुक में किए गए थे वो जरा समझते हैं। How did they come to know about the structure of benzene? Let us understand this. When they reacted, 1 mole of benzene, 3 moles of dihydrogen required. Hello. How many moles of dihydrogen? What do you conclude? Benzene के पास कितने डबल बॉन्ड होने चाहिए? Easy to understand. It should have how many double bonds? At high temperature and pressure. But निकल होता है तो high temperature and pressure चाहिए. And cyclohexane is obtained. What did you get? तो बेंजीन के बारे में आप क्या बता सकते हो? उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? लीनियर होगा, ब्रांच होगा, साइक्लिक होगा? उसके पास कितने 10 डबल बॉन्ड होंगे? 2 होंगे, 3 होंगे? 3। करेक्ट और नॉट? When they are talking of, see, your book doesn't say that. They had explained this is the reaction, and from that reaction we concluded it should have a cyclic structure and 3 double bonds. खाली ऐसा ही नहीं, सेम थिंग रिपीटेड अगेन जब उन्होंने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया. हाउ मेनी क्लोरीन एटम, क्लोरीन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड? 3. एंड मिला क्या? हेक्साक्लोरो. In reaction with 1 mole of benzene with 3 moles of chlorine in the presence of ultraviolet. Immediately दिमाग में बैठता है, 2 बार कंफर्म हुआ. Then benzene should have a cyclic structure. It should have 3 double bonds. Not only that, उसके बाद ये रिएक्शन में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट विल एक्सेप्ट इट. इट ऑल्सो कंफर्म्स द सिमिलर थिंग. लेकिन एक चीज बताता है कि अगर हम बेंजीन को 1 मोल ऑफ बेंजीन को 3 मोल्स ऑफ ओजोन के साथ लगाते हैं, अनस्टेबल बेंजीन ट्राइओजोनाइड इज ऑब्टेन. फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस जिंक के साथ करते हो तो ग्लायोक्सल मिलते, 3 मोल्स ऑफ ग्लायोक्सल, which proves that there is an alternate double bond. डबल बॉन्ड एक साथ एक के बाद एक नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता है डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, लाइक दैट. ऑल्टरनेट क्या है? मैं उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं दिया, not going at this moment, not required. And from the above 3 reaction, conclusion is this. From the above reaction 1, 2 and 3, it can be proved that benzene contains hexagonal cyclic structure, and in the ring there is 3 single bond and the 3 double bonds are present alternatively. If they'll ask you a question will be this: give structure of benzene based on chemical properties. तो आपको ये आंसर लिखना है. ये 3 रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज. शुरुआत यहां से करोगे. ये पहला पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज. वहां से चालू करके ये 3 रिएक्शन समझाने यहां तक. इज इट फाइन? समझ में आ रहा है?